I happily welcome our speaker, Dr. Bhavna ma'am. She is working as a principal Theatre. with 32 years of experience in the field of nutrition. Dean Sardar Patel University. She has been awarded Best Leadership Award by Dr. Kalam International Foundation, Gaurav Puruskar by Biggest Trust, Charutar Vidya Mandal, awarded Best Paper in International Conference at AIMS, New Delhi, membership of Academic Council, Review Committee of KGC, Board of Studies members, Sardar Patel University, member and interview committee at Gandhinagar, MSU, SPU, KGC, coordinator of MSc IGNOU courses at Gujarat, UGC NAT and CPE SSL, Vice President at Indian Diabetic Association Gujarat, Vice President at NET Propane FSSAI Committee member, examiner at various universities for PhD guided more than 30 MSc students, published national and international papers, published about 5 books, delivered more than 100 talks, and important talks on nutrition in India and abroad. I heartily welcome you, ma'am, for today's program. So over to you, ma'am. Without wasting any time, I would like you to kindly start the program. Thank you. Thank you, Shivani ji. First of all, I regret and I'm sorry to all for the delay, but there was a major power related mandate, so it was out of my control. Now, can you change my PPT to slide 4, please, Shivani ji? Okay. Not this one, the first slide I have. Okay. So here, first of all, I wish all of you wonderful Mother's Day, and I appreciate Saksham Society that they are organizing such particular webinars. It's a need of time, and I thought that everyone is really going to talk on various aspects of lactation and the importance of mother's milk, etc. But as we all know that our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had declared last year as Shri Ann year, that is the year of millets, and it continues now. So keeping that in mind, and when I was going through the literature, I found that there are too many positive things for even a lactating mother. If you can. Hello. I'm sorry for interrupting. Actually काफी सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं. They are requesting that kindly speak in Hindi. Okay, fine. Thank you. हाँ, तो it's okay. I understand and appreciate. So Narendra Modi ji ने हमारा last year 23-24 Shri Ann year करके declare किया था, and that was the year of millets, and it continues now and further. Now जब मैं literature पढ़ रही थी तब मैंने देखा कि मदर्स के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए तो बहुत कुछ किया जाता है, पर मिलेट्स में भी ये मदर्स के लिए काफ़ी ऐसे न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से दे कैन रियली डू वेल. एंड इसमें जो हम लैक्टोकोक्स की बात करते हैं लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, तो श्री अन्न में गैलेक्टोकोक्स होते हैं, उस वजह से I chose this particular topic. Millets, next slide please. I would, yes. So first, though we know what is lactation, I'll just give मैं थोड़ा आपको lactation का overview दे रही हूँ. जो हमको मालूम है, it is a process of making human milk,
and milk is secreted through mammary glands, which is like located in breasts. और जब एक पर्टिकुलर माँ लेडी माँ बनने वाली है तभी वो लैक्टेशन की प्रोसेस के थ्रू पास हो सकती है. नेक्स्ट प्लीज. सो मैं मानती हूँ कि लैक्टेशन इज अ वेरी pious, a very important aspect, and it should be taken very seriously by all of us who are on this platform, and we should promote the feeding or continuing lactation for 1.5 years. क्योंकि day by day the younger generation, yes, they are getting very busy with their work and all their stress aspects. lactation कम होने लगा है, ऐसा रिसर्च कह रहा है. तो दैट्स व्हाई अगर हम उनको धीरे धीरे मोटिवेट करेंगे तो श्योरली ये चिल्ड्रन भी अपने बच्चों को फीड करेंगे, एंड वी विल गेट हेल्थियर जनरेशन इन फ्यूचर आफ्टर 20 years. मिलेट्स के बारे में बात करूँ सबसे पहले तो मिलेट एक ग्रुप है सीरियल्स की तरह जो न्यूट्रिशनली बहुत ही साउंड है. इट इज वेरी साउंड. इट इज ड्राउट टॉलरेंट, मतलब उसको बहुत कम पानी चाहिए, इसलिए वो अच्छी तरह से जल्दी जल्दी हम उसको लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसकी खेती हो सकती है. ये मिलेट्स बड़े छोटे से ग्रेन्स हैं एंड दे ग्रो इन वार्म एरियाज. पूरे वार्म एरियाज में उसकी ग्रोथ होती है. And botanically it is a family of Quercia. The millets are superior than wheat and rice. और आप में से काफी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आई एम वेरी श्योर कि इन दिनों धीरे धीरे प्रोटन करके wheat को साइड में रख के we have started eating more of jowar and बाजरा को हम खा ही रहे थे, रागी, फॉक्सटेल मिलेट एक्सेट्रा. तो काफी मिलेट्स हम खाने लगे हैं धीरे धीरे क्योंकि उसकी अवेयरनेस भी बहुत होने लगी है और मोदी जी भी उनके बारे में बहुत बताते हैं काफी उनके सब शोज. मिलेट कोर्स सीरियल है, थोड़े छोटे और कुरकुरे से है, स्मूथ नहीं होता है उसका फ्लेवर, and they constitute an important source of food or a fodder which plays a vital role in our life. So that's why we should consume millets. The next slide. Okay, this is the slide which I started with, that International Year of Millet was considered 2023 as Shri Ann. एंड मोदी जी ने भी इस पे काफी अवेयरनेस क्रिएट करवाने की कोशिश की. नेक्स्ट. अभी आपके सामने जो एक फोटोग्राफ दिख रहा है वो अलग अलग मिलेट्स जो अवेलेबल है हमारे कंट्री में या ग्लोबली उनके हैं, जिसमें पर्ल मिलेट, सॉर्गम, फिंगर मिलेट. पर्ल मिलेट हम लोग सभी कब से खा रहे हैं, जिसे हम बाजरा कहते हैं. बार्नयार्ड एक्चुअली पक्षी को हम खिलाते हैं, बट नाउ वी शुड कंज्यूम. माय PhD student's topic is she is working on barnyard, foxtail millet, कोडो मिलेट जो हम कभी कभी फास्टिंग करते हैं तब खाते हैं, लिटिल मिलेट भी, और प्रोसो मिलेट. सो दीज आर मेजर 8 millets which should be focused or which are focused a lot in our day-to-day life, जिससे हमको काफी सारा न्यूट्रिशन मिलता है, जिनकी वजह से हमको ग्लूटेन इंटॉलरेंस मतलब सेलियाक डिजीज कम होता है और हमारा स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है. नेक्स्ट. ओके, दिस इज व्हाई मिलेट इज अ सुपर फूड फॉर मॉम्स. मैंने तो ये आपको सिलेक्ट किया है बताने के लिए कि लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर शुड कंज्यूम मिलेट. तो क्यों? क्योंकि खास करके पोस्ट डिलीवरी, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की काफ़ी चैलेंजेस रहती है, हम सब जानते हैं, जिनमें मदर्स को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट होती है, उनको डबल
न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो बच्चों को फीडिंग कर रहे हैं। उनका वेट गेन हुआ है तो उसको भी वापस शेप में लाना है। उनकी इम्यूनिटी कम हो गई हो तो उनको भी वापस रिटेन करना है, गेन करना है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग हर रोज डिस्कस करने वाले हैं, उनमें अगर हम मिलेट खाएं या मिलेट प्रमोट करें लैक्टेटिंग मदर्स में, तो वो एक पावरफुल सुपर फूड है और उसके अंदर एनर्जी बहुत काफ़ी ज़्यादा मिलती है, प्रोटीन्स मिलता है, जो भी फैट्स है मिलेट के अंदर वो अच्छे वाले फैट्स। अब हम लोग ज़्यादातर फैट से भागते, you know, we have this Google Baba का knowledge, so that's why we consume or we avoid fat, कि फैट्स नहीं खाना है, उससे मोटापा आता है, उससे हार्ट अटैक आता है, हार्ट डिजीज होता है। बट अच्छे फैट तो अच्छे ही फैट, सो मिलेट के अंदर अच्छे वाले फैट्स हैं और इसलिए वो खाने चाहिए, मदर को भी बोलना चाहिए खाए। काफ़ी मिनरल्स एंड वाइटामिन, माइक्रो मिनरल्स भी उसके अंदर आते हैं, तो उसको हम होलिस्टिक फूड ऐसा कह सकते हैं। और पोस्ट डिलीवरी फॉर श्योर मदर्स को प्रमोट करना चाहिए, देना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, क्यों देना चाहिए? सबसे पहली चीज है, ये न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। मिलेट इज द न्यूट्रिशन पावर हाउस, दैट इज आफ्टर चाइल्ड बर्थ the body needs lot of nutrients to feed yourself। अगर मम्मी हील हो जाएगी तो ही बच्चा ज्यादा स्वस्थ रहेगा, माँ स्वस्थ रहेगी, बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो उस वजह से मिलेट ये सभी पोषण जो कम हो जाता है मम्मी में, खास करके आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई विटामिन, तो वो विटामिन को वापस देने में हेल्प करता है, तो इसलिए देना चाहिए। Then iron is very important for pregnant and lactating mothers, क्योंकि डिलीवरी के टाइम काफ़ी ब्लड लॉस होता है, काफ़ी आयरन कम हो जाता है मदर्स में। तो हम अगर सर्टेन मिलेट्स देंगे जैसे कि बाजरा या सोरगम एक्सेट्रा, तो उसमें से मम्मी अच्छी तरह से आयरन रिगेन करेगी और उसके रेड ब्लड सेल्स वापस आएंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम हर फीमेल के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, हम सबको पता है। एंड कैल्शियम खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बोन्स हैं जो हड्डियाँ, वो जैसे 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 हार्मोनल चेंजेस डिलीवरी के फिर एज आगे जा बढ़ती है, तो मम्मी के बोन्स एकदम होलो हो जाते हैं। उस वजह से बोन्स बिकम होलो, we need foods which are rich in calcium and magnesium, and again millets provide that। उसके साथ साथ हमारे मसल्स धीरे 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 डे बाई डे वीक होने लगते हैं, जैसे कि उम्र आगे बढ़ती है या हम ये लाइफ की चैलेंजेस पास करते हैं, तो इसके लिए हमें मिलेट्स अगर हम हमारे नॉर्मल के साथ प्रमोट करेंगे तो हमारे मसल्स या मम्मी के मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे और उसका नर्वस फंक्शन बेहतर रहेगा, सो वो देना चाहिए। Millets like sorghum are encouraged for pregnant lactating women in many parts of India due to their rich minerals and vitamin content like copper and iron। तो sorghum को आयरन बहुत ज़्यादा देता है, अच्छे अमाउंट में देता है दूसरों उसके मुकाबले, सो इसलिए वो देना जरूरी है। प्लस वो अपना जो एंटीऑक्सीडेंट कोएफिशिएंट है उसको भी अच्छी तरह से मेंटेन करता है, तो हम दूसरे भी इन्फेक्शियस डिजीज से दूर रहेंगे और इम्यूनिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, इसके साथ साथ हम लोग जब भी मिलेट्स खाते हैं तो इट इज़ रिच इन फाइबर, और फाइबर हम सबको मालूम है पाचन में इट हेल्प्स इन पाचन बढ़ाता है, पाचन शक्ति में हेल्पफुल होता है। तो उस वजह से इफ वी गिव और वी प्रमोट फूड्स व्हिच आर रिच इन फाइबर, for sure the mother will be free of constipation, और बच्चों को अच्छी तरह से, जो छोटा बच्चा है उसको अच्छी तरह से वो बड़ा कर सकती है, तो इसलिए वो करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलेट्स में काफ़ी फाइबर है, डाइटरी फाइबर,
So it is very important if we give it post delivery. Plus it gives feeling of fullness. अब कई बार ऐसा होता है कि हम खाना खा लेने के बाद भी ऐसा समझते हैं या हमको ऐसी फीलिंग रहती है कि मुझे भूख लगी है, राइट? तो वो जो रॉन्ग फीलिंग है भूख लगने की खाने के बाद भी, तो अगर हम ज्यादा फाइबर वाले फूड खाएंगे तो हमको फुलनेस लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ पेट भर गया है अच्छी तरह से, और इस वजह से आप ज्यादा अनवांटेड या एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं करेंगे. इट इज सेम फॉर प्रेग्नेंट मदर. Pregnant mother will continue having whatever or n number of amount of food. She will gain her weight like anything, and that will be very problematic in general. तो उस वजह से हम लोगों को ये ज्यादा प्रमोट करना चाहिए या अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए. Then lactation little help. मम्मी मदर को मिल्क आना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ही और अभी के टाइम में हम सब जानते हैं कि we are suffering or all of us have lot of stress, right? जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं कि मेरा पावर सडनली कट ऑफ हो गया, कब से more than 45 minutes से नहीं था. I tried calling, तो I was so stressed, right? इसी तरह से हम लाइफ में we have so many kind of stress, and especially जब हम लेडीज की बात करते हैं तो लेडीज को हर किसी की टेक केयर करनी होती है. इस वजह से वी आर ऑन मैनी फ्रंट्स अंडर स्ट्रेस. तो ये वजह से कई मदर्स, यंगर मदर्स एज दे आर वर्किंग हैव प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग मिल्क फॉर लैक्टेशन. उनको मिल्क सिक्रेशन कम हो जाता है, नहीं होता है, बहुत कम मिल्क आता है. उसके लिए उनको लैक्टोज देना बहुत जरूरी है. जैसे कि हम लोग को कोकोनट ड्राई देते हैं, पॉपी सीड्स देते हैं और काफी सारे दूसरे फूड्स भी लैक्टेटिंग मदर्स को हम वी ऑलवेज कीप ऑन सजेस्टिंग. इन दैट केस इफ यू प्रमोट मिलेट्स टू दिस पर्टिकुलर लैक्टेटिंग मदर, इट विल रियली हेल्प देम इन इंक्रीजिंग देयर मिल्क प्रोडक्शन बिकॉज मिलेट कंटेन गैलेक्टोज. तो लैक्टोज के बारे में तो हम सबको बहुत ही ज्यादा मालूम है, बट गैलेक्टोज इज अपकमिंग. सो प्लीज कीप ऑन सजेस्टिंग टू the mothers to be your students if you are lecturers, so then they know or they can understand that we should consume these particular food too. They are also rich in nutrients and they ensure milk is just a rich source for newborn. Newborn के लिए milk is a rich source. उसके सिवा उसके लिए कोई और फूड ही नहीं है, हम दे नहीं सकते. तो मदर का मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर होगा तो बच्चा अच्छी तरह से बढ़ेगा, उसको प्रॉपर मिल्क क्वांटिटी नेचुरल फॉर्म में मिले. वी डोंट वांट टू गिव एनी फूड फ्रॉम आउटसाइड. सो मदर शुड बी लैक्टेटिंग. मदर अगर लैक्टेटिंग रहेगी, उसको लैक्टेशन आएगा तो ही बच्चा अच्छी तरह से फीड होगा. Millets like ragi and bajra are a gift for mother and children too. अगर रागी और बाजरा अच्छी तरह से दिया जाए तो काफी मिल्क सिक्रेशन होने का, मिल्क प्रोडक्शन होने का ब्रेस्ट में चांस है, और उस वजह से द मदर विल बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेन्स. इट इज ऑल्सो नोन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड हेंस शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट्स ऑफ लैक्टेटिंग मदर्स. इसलिए लैक्टेटिंग मदर्स के डाइट में उसको हमेशा डालना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. इसके साथ साथ these days people have become very conscious about gluten. काफी लोग मीट नहीं खाते हैं, काफी लोगों को स्टमक में, पेट में गड़बड़ी रहती है. तो पेट में गड़बड़ी रहने की एक वजह है gluten, celiac disease, a kind of celiac disease. So by raising cases of gluten intolerance, millets offer a safe haven and makes a perfect fit for sensitive digestive system. Post delivery के बाद अगर digestive system हमारी sensitive है तो millets खाने से in proper proportion
the gluten intolerance come in, and that's why the mother will be good, her digestive system will be very good, and she will be happy, and so the child. It is an energy booster. उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिसमें इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है, एंड दैट्स व्हाई मिलेट खाने से हमको काफ़ी कार्बोहाइड्रेट मिलने से माँ को थकान नहीं महसूस होगी, माँ को एनर्जेटिक लगेगा, और उस वजह से वो काफ़ी समय तक सब अपना नॉर्मल रूटीन बच्चे के साथ कर पाएंगी, तो इसलिए भी मिलेट अच्छा है। देन नेक्स्ट, other than energy boosters, millet can be given to improve your skin textures, to improve your day-to-day core life activities, and उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सजेस्ट किया है कि किस तरह से मिलेट हम हमारे डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इसकी एक पर्टिकुलर सिस्टम रहती है खाने के लिए, क्योंकि वो एक हार्ड अन्न है, राइट? इट इज हार्ड होता है। आई एम नॉट कंप्लीटली अ हिंदी पर्सन, सो आई एम नॉट कैचिंग ऑल हिंदी वर्ड्स, आई एम सॉरी। So the hard cereals or hard grains are not easy to digest, और उस वजह से अगर हमको मिलेट खाना है तो उसको एक पर्टिकुलर वे में खाना है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको काफ़ी आवर्स तक सोख करना पड़ता है। जब भी आप मिलेट खाएं तो उसका सोकिंग करके फिर उसको जो भी बनाना है बना सकते हैं, वो नंबर 1। नंबर 2, आप उसको स्प्राउट करके, इससे वो स्प्राउटिंग के होल करके वो प्रोसीजर के बाद अगर उसमें से आपने आटा बनाया या उसकी रेसिपीज बनाई या उसका पोरेज वगैरह बना के आपने सर्व किया, तो इट विल बी मोर ईजियर टू कंज्यूम एंड एक्सेप्टेबल whosoever consume. So that should be taken care of when you are consuming millets. Then millets खाने के लिए आपको your selection should be particular as per your health. तो उसको आप अपनी हेल्थ के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से मिलेट खाने चाहिए। जैसे कि अगर हमको मिल्क सिक्रेशन बढ़ाना है तो होल ग्रेन आर गुड, उसकी रेसिपी उसमें से सोख करके दूध का एक्सट्रैक्ट करके वो दूध मिलेट का मिल्क अगर आप मम्मी को देंगे, मदर को देंगे, तो मदर को वो गैलेक्टोल को सप्लाई करेगा और उसकी वजह से न्यूट्रिशन बढ़ेगी। सो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे मिलेट प्रिपरेशन किए जाते हैं। और आज के ज़माने में प्रिपरेशन सीखना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब में काफ़ी सजेशंस और काफ़ी रेसिपीज अवेलेबल है। हम मिलेट का योगर्ट भी बना सकते हैं, घी भी बना सकते हैं, बल्कि उसके लिए पर आपको अच्छी तरह से प्रोसेस समझना जरूरी होता है। यहाँ मैंने बताया है कि मिलेट मील्स थ्रू आउट योर डे, ब्रेकफास्ट विद मिलेट्स। अब हमारा दिन ब्रेकफास्ट से शुरू होता है और ब्रेकफास्ट लेना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, आप सबको पता होगा, पर फिर भी आई विल लाइक टू हाईलाइट ऑन इट दैट each individual, especially the lactating mother or a mother after post delivery, should take breakfast, should not skip it. उसको skip नहीं करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि पूरे रात की फास्टिंग के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट खाते हैं सुबह, तो सुबह तक वो 8-9 आवर्स में मदर रात को भी बेबी को फीड करती है, मदर खुद नहीं खाती, राइट? तो शी इज स्टार्विंग फ्रॉम फूड, उसको फूड एकदम डेफिशिएंट हो जाता है, उसके कार्बोहाइड्रेट्स पूरी रात में सैचुरेट हो जाते हैं। उस वजह से सुबह जब शी वेक्स अप, उठती है तो शी फील्स वेरी वीक और उसकी एनर्जी ड्रेन रहती। तो वो एनर्जी गेन करने के लिए शी शुड कंज्यूम ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। दैट इज अ न्यूट्रिशियस बॉल ऑफ मिलेट पोरिज। अगर मिलेट से पोरिज बनाया, दलिया वगैरह, तो उससे उसको बहुत अच्छा लगेगा और फटाफट वो खा सकती है। और उसके साथ साथ अगर उसके अंदर हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स
ऐड कर दे, या थोड़े नट्स करे, या सीड्स आते हैं जो अच्छे वाले सनफ्लावर, पम्पकिन वगैरह, वो क्रश करके डाले। स्वीटनेस के लिए जैगरी या हनी डाले, शुगर ज्यादा ना दे। तो ये सब डालने से उसका मॉर्निंग मील ही बहुत अच्छी तरह से शुरू होगा, and it will boost her energy very well, and her day will go well. Then millet based lunch and dinner. So we should explore that what kind of lunch dishes or dinner dishes are best. For example, खिचड़ी आप सबको पता है, शायद उसको तहरी भी बोलते हैं। तो है बहुत सिंपल चीज, पर अगर आप मिलेट की खिचड़ी बना के उसके अंदर खूब सारे वेजिटेबल्स डालेंगे और उसको कर्ड के साथ या बटर मिल्क के साथ दिया जाएगा एज लंच, तो इट इज इन अ वे अ लाइटर लंच बट अ कंप्लीट लंच, राइट। तो उसको बहुत सारी चीजें खाने का अगर मन नहीं है तो आपने एक सब्सटेंशियल मील बना के उसको दे दिया, तो मदर विल बी क्वाइट फुल और उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो वो करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हम पुलाव दे सकते हैं, शाम को हम डोसा, इडली, टिक्कीज वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। हम मिलेट के पराठे भी बना सकते हैं, मिक्स फ्लावर पराठे मिलेट के। तो अगर आपको गेहूं अकेला नहीं देना है तो भी उसमें मिलेट मिक्स करके उसकी अलग अलग रेसिपी बना के लंच और डिनर दोनों में दे सकती हो, जिसकी वजह से उसको अच्छा टेक्सचर भी मिलेगा और टेस्ट भी अच्छा मिलेगा। देन यू कैन इंक्लूड मिलेट सूप्स। मिलेट से बहुत अच्छे सूप्स भी बनते हैं और न्यूट्रिशन ऐड होगा अपने डाइट में, मदर के डाइट। सो यू कैन कुक योर मिलेट्स, you soak for 10 hours and then you cook them। तो उसके अंदर आप अपने ही जो वेजिटेबल्स है वो डालिए, और वो सूप अगर आप मदर को देंगे तो इट इज वेरी गुड अगेन फॉर द मदर, एंड इट विल एड इनटू हर न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट एंड variety in the diet. So that should be taken into consideration. Next, snacking right। हम लोग को आदत रहती है कि हम बीच बीच में कई बार खाते हैं, और मदर को तो खाना ही चाहिए, राइट। वी गिव हर अराउंड 8 meals in a day। तो ऐसा नहीं है कि 4 बार खाया और खत्म हो गया, बट थोड़ा थोड़ा उनका देना चाहिए। तो उस वजह से अगर हमने मिलेट से मफिन बनाए हैं, क्रैकर बनाए हैं, काफी सारे आजकल ग्रेनोला बार्स मार्केट में अवेलेबल है, आप घर पे भी ये बार बना सकते हो गुड़ या डेट्स के अंदर। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी नहीं आएंगे, शुगर भी नहीं आएगी, आयरन भी बढ़ेगा, एंड द मदर विल गेट चेंज। तो ऐसा अगर बना के, जैसे कि हम घर में चिक्की बनाते हैं, जैसे कि हम तिल की वो तिल सांकड़ी वो बनाते हैं, गुजरात में ऐसा बोलते हैं, तो वो सब हम बना के अगर रखेंगे, जैसे कि लड्डू बनाते हैं लैक्टेटिंग मदर के लिए, तो उसके अंदर अगर वी ऐड मिलेट्स, then the mother will get good amount of fiber and some change, thus nutritional richness। तो वो करना चाहिए। मिलेट से अच्छे डिजर्ट्स भी बनते हैं। मीठा तो शायद सब किसी को पसंद रहता है, और मदर को तो मीठा खाने की बिल्कुल she is given all liberty if she is not diabetic, because it is her privilege, she is feeding a child। तो वो केस में अगर हम मिलेट के पुडिंग्स बना के या स्वीट पोरेज बना के खिलवाएंगे या खिलाएंगे, तो दे विल बी फ्री फ्रॉम गिल्ट। उनको गिल्ट नहीं रहेगा कि हमने ये क्या खा लिया या एक्सेट्रा, एंड दे विल इंडल्ज इन हेल्थियर डिजर्ट्स। Then we can make beverages from it। जैसे सत्तू, काफी आप सबको शायद सत्तू अच्छी तरह से पता होगा, which is very popular in north, especially I think Bihar। तो सत्तू भी a kind of, you can add millet in सत्तू, and then you can you know beverage सत्तू से बना हुआ जो beverage आता है वो आपको उनको खिला सकते हैं। फिर रागी से खीर वगैरह बना के भी खिला सकते हैं। तो मदर विल गेट चेंज
and incorporation of millet throughout the day in small proportions will add into nutritional value. So ये करना बहुत ही जरूरी है. Next, I have displayed certain photographs for millet preparations, जिसमें यहाँ पे मैंने आपको पोरेज की फोटोग्राफ रखी है, डोसा बनाया हुआ है, पुलाव है और इडली है. और हम, because I have my student who is working for PhD with millets, तो हम लोगों ने काफ़ी सारी रेसिपीज बनाई हुई है, स्टैंडर्डाइज की हुई है एंड घर पे भी बनाते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज प्रूव्ड कि बनता है, तभी जाके यहाँ पे जिसको डिस्प्ले किया है. नेक्स्ट प्लीज. ये बेवरेजेस के पिक्चर है. नीचे जो बार्स बनाए वो है, इस तरफ क्रैकर्स बनाए हुए और खीर बनाई हुई है. Of course, these pictures I have taken from Google, but we have also developed such products, and they are really tasty and they are very much acceptable. Then making millets work for you in जब आप माँ बन रही हो या बन चुकी हो, तो millets आपकी लाइफ में आप किस तरह से ला सकते हो. तो diversity in your bowl, you can bring diversity. There are variety of millet, foxtail, pearl, finger, koso, etc. तो ये सभी मिलेट को आप अलग अलग तरीके से अगर अलग अलग टाइम पे यूज करेंगे या हफ्ते में 2 बार ये 2 बार वो, उस तरह से, तो आपको काफी अलग टेस्ट मिलेगा एंड योर टमी विल इजीली डाइजेस्ट इट. इसका डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होगा and you will be gentle on your stomach. Being gentle on our stomach is very important, friends. Even now at the age after 30, we have to be very gentle on our stomach, as there are many digestive issues like acidity, etc. and that can be ruled out if we consume millets gradually, selecting one at a time. सब एक साथ मत खाना, एक साथ मत लेना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा. Then sprouted millets are very good. As such, any sprouted pulses or cereals are very good. We know those, I know most of them should be nutritious stomach. तो sprouts करने से उनकी जो वो कुछ निकलती है, तेल मिलता है. वो तेल की वजह से हम certain enzymes को enhance करते हैं और वो एंजाइम हमारी डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करता है और उस वजह से स्प्राउट करना जरूरी है और खाना जरूरी है मिनिमम वंस इन अ वीक. अदर थिंग इज स्प्राउटिंग करने से उसका विटामिन सी कंटेंट का काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है और उस वजह से अगर हम स्प्राउटेड फूड, फर्मेंटेड फूड ग्रेजुअली वंस इन अ वीक इन अ साइक्लिक मैनर खाएंगे तो फॉर श्योर दैट विल बी गुड फॉर अस. तो मदर के लिए तो अच्छा, लैक्टेटिंग मदर या मदर को लिए तो अच्छा ही होगा. नेक्स्ट, embarrassing millets in motherhood. Why? Right? So they are more than just a dietary choice. It's not only a dietary choice, but they change your lifestyle. एक बार अगर हम तय करें कि मुझे लाइफ में ये चेंज करना है, then women is the strongest person on this earth, and you can bring this change in your family life, in your motherhood, in your daughter-in-laws, your daughters, by incorporating one at a time. Plus, it will help to nourish the baby who has just taken birth from this particular world. और उसको हेल्दी करने के लिए ये हमको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करना चाहिए. सेकेंड थिंग इज दे आर सस्टेनेबल. पूरी लाइफ के लिए उसको खा सकते हो. सेफ है, इज वेरी सेफ इफ कुक्ड इन अ राइट वे. दे आर लोडेड विद हेल्थ बेनिफिट्स. ये हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए ये सस्टेनेबल है. स्टार्ट विथ small portion and listen to your body's listening. This is very important. Whenever we are sick,
एनी फूड। अगर हम कभी भी कोई फूड सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमको हमारे बॉडी का सुनना चाहिए। हमको तुरंत ही अगर फूड हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो तुरंत ही रिएक्शन दिखाता है। जैसे आपको इनडाइजेशन होगा, जैसे आपको ब्लोटिंग होने लगेगा, राइट। तो कुछ ना कुछ, जैसे आपको एसिडिटी हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उसको आप खुद ही वन एट अ टाइम लेके then gradually make them a staple in your diet. मिलेट अभी तो शुरू ही करते हैं, then gradually मीट की रिप्लेसमेंट मिलेट से करते हैं। ग्रेजुअली हम मीट को धीरे धीरे कम करेंगे और मिलेट्स को एक मिलेट्स को ऐड करेंगे, लाइफस्टाइल बनाएंगे, स्टेबल डाइट करेंगे। ये करने से क्या होगा कि आपकी सिस्टम, आपका बॉडी ज्यादा हेल्थी होगा। आप डायबिटीज से दूर रह सकते हैं, आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज को दूर रख सकते हो, आप जीआई ट्रैक्ट पे अच्छे रह सकते हो, इस पे रहम नजर कर सकते हो। इस वजह से आपको कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज लेटर एज में नहीं हो। तो ये करना बहुत जरूरी है। मेक मिलेट्स योर स्टेपल डाइट ग्रेजुअली as you navigate through the challenges and joys of post delivery and breastfeeding. Let millets be your nutritional complement. जो भी मदर्स अब बेबी के साथ अपनी लाइफ में आगे जा रहे हैं, we all know babyhood is a very lovely time, rather the best time in a female's life. तो अब आप अपने बेबी के साथ अपने सिस्टम को समझने के साथ धीरे धीरे अगर मिलेट्स खाने लगेंगे और उसको समझने लगेंगे तो 100% breastfeeding practice will be more healthier and enjoyable. And breastfeeding practice should always be an enjoyable thing. उसको ऐसे burden करके कभी मत करना. Please share with all lactating mothers. Enjoy the lactation process. Then you will have a very happy. Millets are not just grains, they are a symbol of motherly care, nurturing you and you nurture your new life. अगर आप मिलेट खाना शुरू करेंगे, if lactating mother really accepts and appreciates and enjoys the consumption of types or varieties of millet, for sure her life will be better, healthier, happier, and if her life is better, she will nurture the other life well. तो ये करना बहुत ही जरूरी है। Last slide please. Yes, so that was all I wanted to share regarding why millet should be introduced in a lactating mother. स्तनपान करती हुई माँ की लाइफ में मिलेट क्यों लाना चाहिए एंड मिलेट लाने से उनकी लाइफ में क्या क्या चेंज होते हैं और इन द सेम वे हमारे लाइफ में भी काफी चेंजेस आते हैं। तो हमको आजकल अगर लाइफस्टाइल डिजीज से दूर रहना है, बच के रहना है, हो चुका है तो उसको कम करना है, शुगर, हार्ट डिजीज वगैरह, तो प्लीज फ्रेंड्स start consuming millets, start accepting millets in your life, and I'm sure you will remember many people are working on this. But आज आप मेरे साथ जुड़े तो आप surely बाद में उसको appreciate करेंगे कि हाँ अच्छा किया। So please try. Thank you so much. Any questions from your side? Shivani ji, any questions? If you all are in question, if you want to ask any question, आप अपना माइक म्यूट करके अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Excuse me, ma'am. Yeah, please. Thank you, ma'am. बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत ही अच्छी स्लाइड्स, हाईली प्रेजेंटेबल
बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन आपने इस टॉपिक पे दिया और मिलेट्स और श्रीअन्न पे आपने बहुत ही अच्छे से हम लोग बताया। एक जगह थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, काइंडली उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जैसे कि मिलेट्स में फाइबर बहुत ज़्यादा है या फिर सफिशिएंट अमाउंट है, ये हमारे जीआई ट्रैक्ट की कॉन्स्टिपेशन से लेकर जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम है उससे रिलीफ तो देता है, साथ में आपके उस स्लाइड्स में था कि वो हमारे शुगर लेवल को रेज अप करता है, तभी हमको फुलनेस का आभास होता है। ये जो है ये जो है कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब कि ये स्टेटमेंट हमको सही नहीं लगा। अगर आप उसको सर जस्टिफाई करेंगे या फिर समझा देंगे तो अच्छा होगा। प्लीज, थैंक यू। I appreciate Madam. Thank you so much. Actually, I do not know this, but yeah, it gives fullness. I will very particular. It gives fullness to the stomach. वो आप agree करिए तो it is lot of carbs and lot of carbohydrates. It doesn't raise the bad sugar or the carb raises the complex carbohydrate. जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थोड़े बढ़ेंगे तो वो ग्रेजुअली रिलीज होते अपने बॉडी के अंदर। सो अगर ग्रेजुअली रिलीज होते, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर डायबिटिक, नॉर्मल, तो वो शुगर बढ़ाएगा नहीं, रेज नहीं करेगा, तो इसलिए वो अच्छा है। अगर हम डायबिटिक के लिए बोल रहे हैं तो वी कैन नॉट गिव द डायबिटिक, बट डायबिटिक के लिए मिलेट्स अच्छे हैं, वो 100% बता रही हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दैट पार्ट ओनली। वो उसमें इतने ज़्यादा फाइबर है और उसमें अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं तो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो वी आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू द रिसर्च और देख रहे हैं काफ़ी फायदा हो रहा है। सो दैट इज व्हाई नहीं मैम, आपने थैंक यू मैम, हम आपके वो चीज को कट डाउन नहीं कर रहे हैं, आपने बहुत ही अच्छे से बताया, आपने हर चीज को बहुत ही एलेबोरेट करके समझाया। हमको लगा वहाँ एरर है, चूंकि हमको एरर दिखा, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो कि वो शुगर लेवल कभी भी मैम बढ़ेगा ना तो वो हंगर क्रिएट करेगा, कभी भी फुलनेस का एहसास नहीं करेगा। तो ये हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो इसीलिए हमने सोचा कि वहाँ करेक्शन कर देते हैं, जिससे मेरे जितने भी ऑडिबल फ्रेंड्स यहाँ हैं वो भी समझ सकें कि वो जो है रेजनेस हमारे चूंकि उसमें न्यूट्रिशन भर के है, हमारे प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसमें रिलीज हो रहे हैं और साथ में फाइबर भी है, तो ऑटोमेटिकली फुलनेस का एहसास तो महसूस होगा ही हमको और बहुत देर से हमको भूख लगेगी, लेकिन शुगर को रेज नहीं करेगा। वो हमारे लो जीआई प्रोडक्ट है, इसलिए जो है हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ने नहीं देगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, आई प्रगति जी, मैंने मेरा यहाँ पे देखा, या दैट इज एन एरर, आई एम वेरी सॉरी, आई एग्री, थैंक यू फॉर आइडेंटिफाइंग। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन, वेरी प्रेजेंटेबल स्लाइड्स, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर अ हेल्दी डिस्कशन। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकता है क्वेश्चन। वैसे तो मैम आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही सरल भाषा में था और एकदम इजी लैंग्वेज में, बट स्टिल इफ एनीवन हैज एनी क्वेरी, Actually, hopefully, sorry, yes. I am so well versed with completely so many things शायद नहीं। मैम ये ना कॉमन लैंग्वेज थी जो जनरली सब लोग बातचीत करते हैं ना, तो ये शायद ज्यादा समझ में आती है। So I think there are no more queries. So I would like to request the founder of the NGO, Dr. Shilpi Chauhan, to kindly conclude the session with vote of thanks. Over to you, ma'am. Yeah, Dr. Shilpi Chauhan. am I audible? Ma'am, kindly unmute yourself. Okay, wait. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay, so thank you Shivani for inviting me and thank you so much Bhavna madam, आपने
बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी है, बहुत इजी लैंग्वेज में। एंड मिलेट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर पाते हैं क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, और इसी कारण ही हमें इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने पड़ रहे हैं क्योंकि अपने पास सोर्सेज बहुत होते हैं और नॉलेज नहीं होने के कारण, अवेयरनेस ना होने के कारण वो सब चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। और स्पेशली जैसा हमारे साथ में ऑडियंस जुड़ी हुई है तो आने वाले टाइम में वो भी माताएं बनेंगी, तो बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी उनके हाथों में है क्योंकि जब अच्छा वो खाएंगी पिएंगी तभी एक कहते हैं ना कि एक पौधे को अच्छा खाद पानी दिया जाए तो वो भी फल तभी अच्छे दे पाता है। तो जब तक माँओं को अच्छा प्रोटीन न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, डाइट नहीं मिलेगा, तो वो कैसे अपने को हेल्दी रख पाएंगी और फिर बच्चा भी हेल्दी तभी हो पाएगा। तो नो डाउट मैम आपने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है किस फॉर्म में हम ले सकते हैं। और किसी को स्वीट पसंद है तो स्वीट में भी हम इसको ले सकते हैं, किसी को बहुत सॉल्टी पसंद है वो वैसे भी खा सकता है, और डिफरेंट इसकी डाइट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को भी हम दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा मैम आपका प्रेजेंटेशन था, बहुत इजी लैंग्वेज में किया। हालांकि जो प्रेजेंटेशन होती हैं थोड़ा इजी रहता है, लेकिन हम लैंग्वेज के लिए इसलिए थोड़ा बोल रहे थे कि जो हमारा उद्देश्य है वो सक्सेस हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मैम नेट पे अवेलेबल होती हैं, ऐसा नहीं है, इंफॉर्मेशन सब जगह अवेलेबल होती है, बट बच्चों को यदि हम उन्हीं की भाषा में समझाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो काम किया है हमने उसमें हम सक्सेस हुए हैं, वो कहीं ना कहीं तक मैसेज पहुंच पाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और एक अच्छा श्रोता जब भी सक्सेस होता है, अच्छा वक्ता तभी अच्छा होता है जब अच्छे श्रोता साथ जुड़े हुए हों। तो हमारी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान से सुनती है। और प्रगति मैम थैंक यू सो मच, आपको भी आपने क्लैरिफाई किए हैं कुछ चीज़ें, एंड जितना भी बोला बहुत अच्छा बोला। एंड इन फ्यूचर मैं आपको पर्सनली इनवाइट करूँगी एज ए स्पीकर, क्योंकि आप भी एक अच्छा मुझे लग रहा है कि स्पीकर हो सकते हैं भविष्य में। एंड थैंक यू शिवानी फॉर continuously you are hosting like a very responsible person, and thanks a lot to all for giving your valuable time. Thank you everyone. थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं एक लास्ट में अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। हम लोग काफ़ी सारे MOU करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, तो यदि कोई इंटरेस्टेड हो तो वो पर्सनली व्हाट्सएप करके